But why India doesn't have such global level big brand or global company at this point? We have lots of conglomerates. There's Reliance, there's Tata, there's Birlas, there's Kotak is also okay. Obviously, in one sector dominating, but still, Yeah. we have a lot of these institutions which have done well. See, you must understand from an India point of view, until 1991, industries in India were artificially protected because international competition was not easily permitted. Right? Even in banking, for example, since you talked about Kotak, right? Banks were nationalized. उसके बाद पहले जो प्राइवेट सेक्टर लाइसेंसेस थे 1995 में दिए गए थे. HDFC was one of those. बाकी चार जिसको दिए वो चारों के चारों उड़ गए और they got acquired by others because they did not do well. उसके बाद 2003 में लाइसेंस जो हमको मिला था, right? But it is still a very restricted license. But अब it is changing. Foreign ownership of banks is now become relaxed. So NBD को भी allow कर दिया है कि you can own a majority, DBS को. So competition is now increasing, right? In manufacturing, in other products, we did not have competition. So if you did not have competition and if your industry was protected, you don't have an incentive to innovate. You don't have an incentive to invest in the future. आपको लगता है तो बढ़िया चल रहा है. आपको 1991 में when the initial set of reforms were there, right? There was something called the Bombay Club. It was a club of industrialists who were opposing opening up the economy, allowing imports and so on. क्योंकि उनका पैसा कटता. Correct. This was this thing. And interestingly enough, one of the persons who was the leading voice of that was Mr. Bajaj. कि ओपन मत करो. हाँ, right? But look at Bajaj, world beater today, right? So it is not like हमारे यहाँ काबिलियत नहीं है, right? It is a question of what is the environment forcing you to do. बट अब तो टाइम हो गया उसको यार. उसके बाद उसके बाद मतलब अब हो गया. अब हो गया. तक हम वेट करेंगे. यस, हम ये नहीं बोल रहे पास्ट में, हमारे पास आज भी नहीं है. Like 2000, I'm just saying, let's say 2011, 12, 13 के बाद वेंचर कैपिटल भी तेज़ी से मिला इंडिया को, राइट? ऐसा भी नहीं है 2014 के बाद से, जब से हमारे पास फर्स्ट यूनिकॉर्न हो गया, उसके बाद से तो देन मनी जस्ट स्टार्टेड फ्लोइंग. फ्लिपकार्ट स्टोरी के बाद और पैसा तेज़ हो गया, राइट? 10-12 साल में हमने कोई ऐसा बहुत क्रेजी टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ब्रांड कुछ नहीं देखा. कोई एक साइन भी नहीं देखा कि कोई बन रहा है. लेट्स से आई एम नॉट सेइंग कि somebody can come and beat all around the world. कोई साइन भी नहीं है. But that is whereas when you look at these companies जो अभी globally command कर रही है, right? Your SpaceX just happened, Nvidia, अब उसके बाद अब Anthropic और OpenAI, ये लोग सब जाएंगे. ये लोग भी पिछले 20-25 साल के अंदर सब टेक्नोलॉजी का बेस भी इनका तब का है. ये कंपनीज तो खैर और नहीं है under 10 years. So I'll give you, I can only hazard a guess. I'm not an expert on the subject. But अगर आप देखो, आपने सैमसंग का एग्जाम्पल लिया, TSMC का एग्जाम्पल लिया. These are hardcore technology companies which were making products not for their home market. Even if they did make for the home market, they were such small market that got saturated. They had to look for the rest of the world and had to be the best in the world to be able to sell in the rest of the world. Right? In our case, we haven't had the level of investment in R&D that we ought to have had over a country of our nation, of our size. Secondly, we have a very large domestic market. So there's a lot of money that you can make in the catering to the domestic market, which is, I can call it a low-hanging fruit. Doing R&D, creating a new product is hard work, right? Like you said, VC में बहुत पैसा आया, right? How much of it went into completely new product development? So I'm asking why? हाँ, तो because our younger entrepreneurs also see कि भाई मैंने Amazon को कॉपी किया, फ्लिपकार्ट बना दिया. बॉबी पार्कर को कॉपी किया, लेंसकार्ट बना दिया. इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है, अमेजॉन यहाँ पर इतना प्रेजेंस नहीं है, तो आई कैन बिल्ड अ बिजनेस, राइट?
तो हमने बोला कि जिस डोमेस्टिक नीड्स ही पूरी कर लो, हाँ पहले तो जल्दी जल्दी डोमेस्टिक नीड पूरी करो, बट देन द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम also has to enable. In other parts of the world, the collaboration between academics and industry is somewhat much more integrated and deeper. हमारे यहाँ वो नहीं था. For a variety of different reasons, the way our academic policies worked, it was not possible for some private sector guy to go and tell an IIT Bombay कि आप ये लो $10 million, why don't you do something like this, right? वो that got enabled only in the last, let's say, within the 8 or 10 years. Now wealthy people can donate to, we don't have incubation centers which help entrepreneurs. See, entrepreneur को initial stages में बहुत ज़रूरत पड़ती है. वो struggle कर रहा है या कर रही है, उसको पता है, suppose it's a technical product for example, right? They are applying their mind 100% on that, right? For them to be able to, आप venture capital भी raise करो, फिर सरकारी licenses भी ले लो, फिर for example if you take medical sciences, we have a life sciences fund. Some of those entrepreneurs, they just don't have the capability to navigate because it's a medical product, it goes into the body. There are lots of regulatory oversight as to how the product will eventually make it to market. There are multiple levels of trials and approvals and so on and so forth. These people don't have that, skills to do that, right? And they are small companies. You can't hire an army of guys to go and do all of that. So they need that support. They need that help, right? Policies have to be enabled to do that. You experimented with saying, I'm going to have a different evaluation criteria for startups which are providing critical solutions for knotty problems in defense. ये आपने मोटा मोटा एक statement मारा और एक आपने procurement policy बनाई. 50 कंपनी खड़े हो गए, डिफेंस फंड खड़ा हो गया, चल रहा है. So because you enabled it, right? The realization that enabling has to be done is absolutely critical. But whose problem would you say it is? Is it? It is our problem. We have to solve our problem ourselves. By our, I mean, like, let me be more specific. India से global brand क्यों नहीं बन रही? क्योंकि is it government policy problem? Is it capital बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, दैट प्रॉब्लम? कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स की इतनी सोच ही नहीं है, पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि भाई ग्लोबल फर्स्ट कुछ करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. There are enough ambitious people in the country. Yeah. And so that is entrepreneur problem नहीं है. Entrepreneur problem नहीं है. And the other two problem, do you think the capital I is think like capital is definitely. See, India is always a capital starved country. So it's you guys. Yeah. We are a capital. You don't want to put in money. हमारे देश में सरप्लस था ही नहीं. तो आज भी आप लोग, तो इसीलिए तो आप हम जैसे एम्बिशियस लोगों पे पैसे नहीं लगाने, क्योंकि तो वीसी भी बाहर का ही पैसा लेके आ रहा ना. तो डोमेस्टिक कैपिटल तो है नहीं. नाउ कमिंग टू डोमेस्टिक कैपिटल में रिस्क एपेटाइट नहीं था. आप देखोगे अगर इंडिया का डोमेस्टिक सेविंग्स जो है इक्विटी मार्केट्स में अब जाके कुछ 8-10% के करीब गया है. फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज बीन स्टैक्ड अप इन गोल्ड एंड रियल एस्टेट. अब recent आंकड़े देखो तो it looks like your grandmother was the most successful investor because she bought so much of gold. And gold prices have gone up so much, right? But that's been this philosophy of, investment philosophy so far. And the pools of capital that we have, जैसे, we talked about pension funds and insurance companies and other parts of the world. If you look at India में क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पर भी तो pension fund है, right? So we have EPFO. And we have the National Pension Fund, right? National Pension Fund is about 17 lakh crores right now. EPFO is about 26 lakh crores, thereabouts. And growing at 20% per annum. By 2030, these two put together will be $1 trillion. Just these two. ये कहाँ लगा रहे हैं? That is the question, right? Right now, they are not investing. Their exposure or investment into venture capital, private equity, private credit or real estate is zero. तो कहाँ लगाते हैं? Government bonds में लगा रहे हैं. Majority of it is government bonds or they have put it in as per regulations in ETFs in the public equity markets. Why? Because that's how the regulations have been for them. They are permitted to invest 5% in these alternate assets, but they don't have the skill sets to do that. किस फंड में डालें, क्या स्ट्रेटेजी करें, और वही रिस्क अवर्जन वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, कोई नई चीज़ क्यों करूँ. So that currently the good news is that there is a lot of engagement between industry and
these pools of capital to try and channelize this pool of capital in an organized way to these risk assets. Venture capital is risk investment. Private credit is risk investment. आप नहीं करते risky investments? करते हैं ना. So जैसे said life sciences में we do early stage R&D based companies, right? You do. Yeah, we have a fund which does that. So the question is कि इतना capital है नहीं. तो ये these big pools of capital have to start moving towards some of these things. How much? You know, you'll be surprised. Life Insurance Corporation. Do you know what is the world ranking of LIC? It's amongst the top 10 companies in terms of size. How much money do they? Top 10 life insurance company. Haan. How much do they invest in these? Hardly anything. And their capital pool would be insane. Yeah. So you have to, you know, there is a lot of lack of risk appetite in regulators' minds. Is it regulator? Yeah, because these are... Or it's like these are individuals sitting on pile of cash just with that hangover. It's a mix of that. वो तो hangover तो है ही. But it is the regulatory hangover, right? So पहले तो regulator कहे कि आप नहीं कर सकते. फिर आपने कहा कि अच्छा आप मतलब जो है ना 5% कर सकते हैं. 5% कर सकते हैं ये तो कह दिया उन्होंने 4-5 साल पहले. लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेशनली इतने सारे अड़चने हैं कि एक पैसा भी नहीं आया. तो हमारे यहाँ जो है ना इंटेंशन और एक्शन के बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम फासला है. एंड वुड यू से ये जो हैंगओवर है ये पॉलिटिकल हैंगओवर ज़्यादा बड़ा है कि फेमाइन हैंगओवर है कि हम मतलब इसी बहुत लोग जो इस कैपिटल के ऊपर बैठे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस बात से डरते हैं कि भाई कुछ भी गलत ना हो जाए इसलिए हमको बचा के रखना है. करेक्ट राइट कि वो इस बात से डरते हैं कि यार गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, पॉलिसी चेंज हो जाएगी, रेगुलेशन अप एंड डाउन हो जाएंगे, हमें डर लगता है. इन सब चीज़ों में तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो बना दिए हैं लेकिन इट इज दैट रिस्क अवर्जन कि कुछ गलत हो गया तो ये जो डर है ये डर अभी समाया हुआ है. अब आप उनको जाके स्पीच दे दो कि वे डर के आगे जीत है, कोई सुनने नहीं वाला है. उन्हें कोई मतलब नहीं. बट एक बेंचमार्क बनाना चाहिए ना कि अगर तुमने इतने % रिटर्न नहीं लाए तो तुम्हें. हाँ तो वो दोज आर थिंग्स दैट विल इवॉल्व. एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर स्टिल डायनासोर्स इन दोज काइंड ऑफ इवोल्यूशन. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सही टाइम पे रिस्क एपेटाइट बढ़ाई और अभी काफ़ी रिस्की बेट्स करते हैं? डोंट से यूएस बिकॉज यूएस इज़ अ वेरी रिस्क लाइक they are very risk forward looking country. risk appetite उनकी बहुत बड़ी है. surplus capital plus like उनके DNA में है right. American dream is that बच्चा वही करता है कि भाई इनोवेट करना है और उनको दुनिया ही दिखती है और उनको सब फोड़ना है राइट. तो बहुत रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी एपेटाइट उनकी बहुत स्ट्रांग है. There are pension funds in, you know, for example there are Dutch pension funds which do a good job. And their risk appetite is good. Their risk appetite is good. Then there are, of course, you know, in Europe there are. How's Singapore's risk appetite? Singapore is such a small country, but they have so much of surplus capital, right? And they have two sovereign funds. One is GIC, the other is called Temasek. Interesting is Temasek was, you know, when the country started doing very well, and the state-owned enterprises, जैसे उनकी airlines थी वगैरह, उन सब बिग कंपनीज को उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चलाएगी, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलाएगी. वो थी तेमासेक. और तेमासेक वो कंपनियां चला रही है, उनमें से जो प्रॉफिट्स आया है, डिविडेंड्स आया, उसको वो इन्वेस्ट कर रही है बोथ विद इन सिंगापुर एंड आउटसाइड सिंगापुर. दी GIC जो है एज अ कंट्री, ली कुआन यू रैन इट सो वेल दैट द कंट्री ऑलवेज हैड अ प्रॉफिट. लेट मी पुट इट दिस वे. Capital surplus. That surplus over a period of time built up into a sizable amount, and he created this separate institution called Government Investment Corporation of Singapore. और उनके चार्टर और मैंडेट में लिखा हुआ है कि उनकी सरकार इस कंपनी के प्रॉफिट को उठा के दूसरे अपने काम पर नहीं लगा सकती. There is a maximum limit. Nice. So the money has to keep on investing and earning more and more and more. आपने रुपया कमाया, सरकार उसका जो है 50 पैसे ज़्यादा ले नहीं सकती. 50 पैसे तो वापस आपको मार्केट में डालना पड़ेगा. ये उनके चार्टर में लिखा हुआ है. नाइस. तो कैपिटल प्रिजर्वेशन का जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं, इट्स
they are thought 50 years ahead. ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ तो यहाँ पर आते हैं दो फ्लाईओवर एक दूसरे को नहीं मिलते यार. ये तो प्लानिंग है हमारी. फिर आप अब पैसे लेके आते हो उधर लोगों से, ये सब हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी आप पैसे ले आते हो. तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पर सोल्यूशन के लिए पैसे, वहाँ पर मौका भी होता है. तो आपने रिसेंटली जैसे अबू धाबी से पैसे लिए, कोरियन पेंशन फंड से पैसे लिए, राइट? तो जब अबू धाबी या कोरियन पेंशन फंड इंडिया को देखता है, वो ये नहीं देखता है कि मुंबई या दिल्ली है, अहमदाबाद है, वो ऐसे आपस में नहीं कंपेयर करता, राइट? वो कंपेयर करता है इंडिया को ब्राज़ील से, वियतनाम से, ताइवान से, साउथ कोरिया से, इन सब से. तो उसके बाद भी दे गिव यू मनी. व्हाट अपॉर्चुनिटी डू दे लुक? और रियल स्टेट स्पेसिफिकली, क्योंकि रियल स्टेट में पैसा लगा रहा है, तो वो दूसरी कंट्रीज में नहीं लगा के आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो $1 बिलियन दूसरी कंट्री में भी लगा रहा होगा, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं लगा रहा है. रियल एस्टेट में फॉर एग्जांपल जो हम करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पैसे भी और दूसरी जगह जा सकते हैं. आपके पास क्यों आ रहे हैं? इट्स अबाउट एसेट एलोकेशन. यहाँ पर एक मौका है, मैं एक सर्टन परसेंटेज ऑफ व्हाट आई डू आई विल पुट इन दिस. ओके, राइट. डाइवर्सिफिकेशन कह लो, या एक अपॉर्चुनिटी है विच मीट्स माई रिस्क रिवॉर्ड, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ. एंड so India में global investors have made a lot of money in real estate in the past. People, आप you take a company like Blackstone, उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑफिस बिल्डिंग बने हुए थे और चढ़े हुए थे उनको खरीद लिया, राइट? 35-40 मिलियन स्क्वायर फीट बिल्डिंग्स ऑल अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर वगैरह उन्होंने खरीद लिया और उसको जो उठा के एक रीट बना के बेच दिया. एंड दे मेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट. सो पीपल सी कि अच्छा यहाँ पर रियल एस्टेट में पैसा बनता है. ब्लैकस्टोन ने किया है, ब्रुकफील्ड ने किया है. हम लोग रेजिडेंशियल में हाई यील्ड क्रेडिट में मल्टी बिलियन डॉलर्स वी हैव पुट इन एंड मेड मनी. दैट इज़ व्हाट वी गो एंड टेल देम कि इंडिया में होम ओनरशिप इतनी कम है कि अगले 10-15 साल तक आपको मकान बनाने ही पड़ेंगे और बेचना ही पड़ेगा. बट मकान खरीद ही नहीं पाएंगे लोग, पैसे नहीं बनते थे. नो, वो right now, so there will always be cycles. Real estate is always a cyclical industry, right? Home sales are very robust across the top 5 cities. हम हर सिटी में नहीं जाते, top 5 cities में. They are very robust at the right price point. There is always a taker. But luxury houses are in demand, right? उसके अलावा तो कुछ नहीं, और रहते नहीं है कोई उनमें, लोग खरीद के रख लेते हैं. देखो, अगर कोई बिलियनर 2 मकान खरीदना चाहता है and I have funded the builder who's going to sell it, मेरे को क्या फर्क पड़ता है वहाँ रहता है कि नहीं रहता है? मेरा तो पैसे आ गए ना. तो दैट्स व्हाट आई हैव टू कॉल फॉर एज एन इन्वेस्टर, कि कैन आई पुट माई मनी टू वर्क एंड कैन आई गेट माई मनी आउट विद रिटर्न्स. एंड यू सी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन रियल एस्टेट. सो देयर इज, यू हैव टू प्ले द साइकिल. इफ आई सी इन द लास्ट 20 years, देयर वर टाइम्स व्हेन द रियल एस्टेट मार्केट वाज कंप्लीटली स्क्रूड अप. 2007-8 के बाद कुछ भी नहीं हो रहा था. लेकिन जो कुछ भी 2-4 प्रोजेक्ट्स थे जो बन रहे थे, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे थे किसी से, ना बैंक दे रहे थे, ना कहीं और फॉरेन इन्वेस्टर से भाग गए थे. हमारे पास थे, तो हमने मौका का फ़ायदा उठाया, हमने उसको हाई रिटर्न पर डेट दिया. प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बिक गया, हमारे रिटर्न आ गए. आप कोविड का टाइम ले लो, सब घर पे बैठे थे. उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारा कैपिटल था, बहुत रियल एस्टेट में भी था, हमारे प्राइवेट क्रेडिट फंड में भी था. तो आप कहते हैं ना कि इंडिया में इतने प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी रिटर्न कैसे बनता है, ये मैं हमेशा सारे इन्वेस्टर को समझाता हूँ. कोविड के टाइम पे अगर आप देखो, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल उठा लो, इकोनॉमिस्ट उठा लो, वॉशिंगटन पोस्ट उठा लो, एनी ऑफ द इंटरनेशनल, वो लोग इंडिया का एक फोटोग्राफ जहाँ पर लाशें जल रही हैं और लोग जो है रेलवे लाइन पर चल के जा रहे हैं अपने गांव, राइट? ये तस्वीर इंडिया की उन्होंने सब जगह छापी है. ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है ये मैं और आप जानते थे, हम अपने घर पे बैठे हुए थे. ये एक पहलू था जो सच था, बट वो इंडिया नहीं था. देयर इज ऑलवेज इतने बड़े देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करोगे और जो किसी और फंड का इन्वेस्टमेंट कमेटी जो किसी दूसरे देश में बैठा है जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज ये सब है, और उसके पास एक मेमो पहुंचता है कि भाई मैंने इस कंपनी में या इस प्रोजेक्ट में इंडिया में अभी पैसे लगाने हैं, उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या बात कर रहे हो यार,
डोंट वेस्ट माई टाइम, यही कहेगा. हम यहाँ बैठे थे. उस 18 महीने के दौरान हमने $800 मिलियन इन्वेस्ट किया था हमारे इन्वेस्टर्स का इन डिफरेंट स्टेट. एवरी वन ऑफ देम हैज मेड मोर देन 20% रिटर्न. सो द पॉइंट इज every adversity also offers an opportunity. मुझे 20-21% उस टाइम पे इसलिए मिला with people who would never have paid me that return if they had other competing sources of capital. There was no competing source of capital. लोग तो इकोनॉमिक्स पढ़ के बंद कर नक्की करके बैठे हुए थे. हम हैं यहाँ पर. Do you think these media houses globally वो जानबूझ के पेंट करते हैं इंडिया की एक जानबूझ के देखो ऐसा है कि मीडिया का अपना एक असूल है. जो वो कहते हैं उनको भी तो अपना माल बेचना होता है. बट स्पेसिफिकली इंडिया को बहुत लोग बदनाम क्यों करते हैं? देयर आर स्पेसिफिक फ्यू मीडिया हाउसेज, आई डोंट वांट टू नेम देम, राइट, बट यू नो, आई नो, उनमें कभी आप एक चीज़ पॉजिटिव इंडिया की पढ़ोगे ही नहीं, कभी भी. करेक्ट. आप यहाँ के पॉलिटिशियन के बारे में ले लो, यहाँ की प्राइवेट कंपनीज के बारे में ले लो, यहाँ के लोगों के बारे में ले लो, मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास के सेंटिमेंट को ले लो, इंडिया की अपॉर्चुनिटीज कुछ भी ले लो आप. करेक्ट. पॉजिटिव चीज़ को भी वो नेगेटिव स्पिन देंगे. करेक्ट. राइट. वो है. तो क्यों ऐसा स्पेसिफिक होता है? व्हाट फेवर्स देम? I think you have to you have to accept the fact that there is a certain position that a media house can take. And they want to keep their head in the sand and want to continue in the same position. Why? What helps them? What favors them? Whatever it may help their audience with whom they are addressing. आप यहाँ पर हम कहते हैं किसी टेलीविजन चैनल को बोला ये तो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेगा हमेशा, किसी और को कुछ और. Everybody has a positioning in the market and they want to retain that positioning and they want to ignore the facts for decades. And there may be political compulsions also. Global magazines are not without political interference. Let's be clear about it. So it's an incentive. It's an incentive for some country to defame India. So they use these media houses to keep doing what they're doing. You just have to listen to, a statement made by a very important diplomat. We don't want India to become another China. And they're very in favor to not, so you have to but I don't blame them. This is the reality. You are living in this world, so you have to deal with it. Do you think they can stop even if they say something like this? We don't want India to become next China, because China has become a threat for them. Correct. So for their power challenge, they've almost come to now a position where China and US can now they can't arm twist China. Like अब वो कुछ भी कर लो, अब उस position पे आ गया. Correct. So they don't want any other country to rise to that level of power. Right? And that's why they're saying we won't allow India to happen. We won't allow India to reach that power. Do you think that's possible? They can't stop us? Dekho, if you look at history, at any point in time, a dominant power would have wanted that nobody else becomes a challenger. Agreed. And history has shown us it doesn't stay like that. But do you, right now, I'm just asking blanket, that do you think that US, if they decide, or if US and China together they decide that we should not let India rise, can they do some harm? Look, if the two countries come together, of course they can set back India for sure. Having said that, geopolitics is changing. International, order in terms of loyalties and alliances are changing dramatically, right? So you as a country have to navigate that. Make sure that you have some strategic friends and you don't give up on those friends. And India is doing a good job on that. India is making sure that Russia is still a friend. India is making sure that you have oil, energy security with West the relationship. So we are doing whatever it takes to do. Plus, remember, the rest of the world has also watched what is going on, right? So think about, if you look at last few years, if you look at defense, India was a net importer of defense products. India has now become an exporter of defense products. So if you start arming some of these other guys, over a period of time, they will become your allies because they are dependent upon their own security on the exported defense products that you have, which has been a vulnerability for India if you had all your imported defense product, right?
Now we're exporting a lot. Even in space, we're doing with ISRO and like a lot of new startups. So you have to build your own. You have to build your own modes. You have to build your own defenses, right? And if anything, between what has happened in Iran and Ukraine, warfare has changed completely. It's less human, more drones, more humanoids. That's where security is going to move to. And if you're investing in that kind of future, and if you have capabilities to do that, you will have every nation has some vulnerabilities, right? You have to make sure that your advantages outweigh the vulnerabilities. Tell me, after all the problems right now, currently, okay, economy की, हमारा energy dependency की, दो global powers आपस में मिल रहे हैं, show off the world power of, like they're showing the power. India technology, semiconductors और AI technology में काफ़ी पीछे रह गया है. Like bunch of things are happening. रुपी बहुत वीक होते जा रहा है. तो कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इंडिया के फेवर में भी नहीं. ऑल ऑफ अ सडन जो बहुत फेवरेबल दिख रहा था अप अंटिल 6-7 months ago, इट्स नाउ नॉट लुकिंग इन फेवर, राइट? ये सब होने के बाद भी प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग मनी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, पैसे बनाने की वजह, आप इंडिया ऑप्टिमिस्टिक हो? देखो, मैं तो परमानेंट ऑप्टिमिस्ट हूँ, इसीलिए मैं हमेशा ये पहन के घूमता हूँ. That's patriotism. ठीक है. That's in me as well. Like I'm also permanent optimism. But I'm also a permanent optimist. Country. Otherwise, I'm in a short cycle, in next 4-5 years. I actually welcome. Do you see people making wealth in India? Certain. So I always welcome a crisis. जब हम अपने आप को समझते हैं हम कि जो है, nothing can go wrong with us. Nothing. We are now the boss. You need a dose of this reality, right? Otherwise, complacency sets in. And there are many things that are wrong with India. There are many things that can be better, right? We always work in a crisis. If there is a flurry of reforms that are being announced or in the process of being announced, it is this crisis which has forced the people to reform. 91 में भी वही था. हमारे पास कोई चारा ही नहीं था हमारे पास रिफॉर्म करने के अलावा, right? Today we are in the same situation. All of that is forcing policymakers to relook at certain things and make things better, easier, etc., as you can think of. So, a crisis is actually welcome. And when a crisis happens and new reforms, come into play, to answer your question, to make money, you look at where the reforms are and what the impact is going to be and invest. Where do you see 3 industries, 3 places where reforms I think healthcare, defense certainly, and space related in India, right? Definitely these 3 areas. And the last, I would say, is what I call as long-term income producing assets. What do I mean by that? Right now, for the average investor, that can be in the form of REITs and InvITs. InvITs are infrastructure investment trusts. In simple language जो अगर मैं समझाऊं कि InvITs जो है, दे ओन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट. जैसे आप समझो 4 रोड दे ओन. अब रोड में ट्रैफिक बढ़ता है, टोल कलेक्ट होता है, टोल में से थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में खर्चा जाता है, बाकी जो पैसा है वो InvIT के ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. बाय लॉ 90% ऑफ द फ्री कैश फ्लो हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज व्हाट द रेगुलेशंस इज. तो हर महीने तो टोल, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, एक कहावत है कि अगर ट्रक के पहिए चल रहे हैं तो इकोनॉमी बढ़ रही है. ठीक है. सो इफ मोर एंड मोर ट्रैफिक गोज थ्रू दैट एंड सम ऑफ दीज टोल, द टोल इटसेल्फ इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, कि अगर इन्फ्लेशन 4% है तो टोल विल इंक्रीज बाय 4%. तो अगर आपने वो InvIT खरीद के रखा हुआ है, आपको हर क्वार्टर पैसा आ रहा है, और हर साल जैसे इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है टोल, आपको इंक्रीज्ड पैसा आ रहा है. कितना ही आता हो, कितने % आता हो? तो टुडे यू कैन बाई दीज एट 7 to 7.5%, 6.75 to 7.5 समझ के चलिए. बट वो आज का रिटर्न है, बट वो बढ़ता हुआ रिटर्न है, और 15-20 साल तक आप कमा सकते हो. बट 6-7% ही ना. करेक्ट. उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखो, वापस उसी में उसके अंदर डालो आप. बट उसकी आपने कहा बहुत सारे दूसरे एसेट्स हैं जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा. हाँ, तो एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस इन योर पोर्टफोलियो.
एवरीथिंग। दूसरी बात क्या है कि आज ये 6-7% लग रहा है आपको, राइट, लेकिन इसी एसेट को अगर इन्फ्लेशन कम हो जाता है, कोई और आके 4% में खरीदने के लिए अगर तैयार हो गया तो आप बेच सकते हो उसको, तो देन आपकी रिटर्न जो है 12 से 15% बन जाती है। और ये हो चुका है इन द पास्ट, ये आगे भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में अब जैसे आपने कहा, मैंने कहा पहले कि लोगों ने रियल एस्टेट और गोल्ड में पैसा डाल रखा है। आपने गोल्ड खरीद के डाल दिया, क्या बना? अभी गोल्ड के प्राइसेस हाई हैं, अगर इस पीरियड को आप इग्नोर कर दो तो पिछले 10 साल में क्या बना होगा? कुछ नहीं हुआ। बट आज तो जिसने 10 साल से होल्ड करके रखा होगा उसने बहुत पैसे कमाए। So you have to wait for 10 years. The point is this. I'm saying that you would have seen कि we were talking earlier कि आपके फैमिली का कोई एडवाइजर होगा LIC का पॉलिसी, अंकल जी आके बोलते हैं कि आप बेटा LIC ले लो, 25,000 रुपये डाल दो, 25 साल के बाद आपको इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। आप उल्टा गिन के देखो उसकी क्या रिटर्न आती है, 7% आती है, 7 से 7.5% आती है। बट इट इज नॉट अ ग्रेट प्रोडक्ट। बट क्यों लेते हो? प्रोटेक्शन के लिए लेते हो, राइट? ये क्यों लेंगे आप, राइट? इफ यू हैव अ नीड फॉर एनुअल कैश फ्लोस और इफ यू वांट टू री इन्वेस्ट दैट मनी, यू आर काउंटिंग ओनली 7%, बट यू आर नॉट काउंटिंग द री इन्वेस्टमेंट। बट ये तो इक्विटी में अगर सिर्फ इंडेक्स में लगाऊं तो वहां पे ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता। इक्विटी रिटर्न्स come with higher risk. It come with higher risk. लास्ट 15 महीने में इक्विटी रिटर्न क्या बना लोगों का, राइट? लास्ट 15 महीने तो फ्लैट है, कुछ नहीं बना है, कम ही हुआ है, और बहुत लोगों के लिए तो एग्जैक्टली। सो एवरी एसेट क्लास कम्स विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क. You have to see whether the risk return makes sense for you or not. एंड इन एवरी पोर्टफोलियो कि भाई आपका इक्विटी का एक स्थान है आपके पोर्टफोलियो में, डेट का एक स्थान है, एन्युटी कैश फ्लोस का एक स्थान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एसेट्स हैं ये बहुत डिमांड में आएंगे आगे फॉर अदर पीपल टू कम एंड बाय। इज दैट ये जो पेंशन फंड और इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे थे, ग्लोबली दीज एसेट्स आर ओन्ड बाय दीज काइंड ऑफ फंड्स, राइट? हमारे यहाँ तो जीरो ओनरशिप है, और जिस दिन ये बड़े कहूने आके खरीदना शुरू करेंगे तो इनके भाव बढ़ जाएंगे, और ये होना ही है। इनको कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए होता है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो चाहिए होता है, तो ये तो होना ही है। नेशनल रेलवेज खरीदते हैं, ये ऐसी चीज़ ही करते हैं, प्राइवेट रेलवेज खरीदेंगे, रोड्स खरीदते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिस होना ही है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, कई चीज़ें गलत हैं, कई चीज़ें सही हैं। भारत सरकार सड़कें बनाती है मेरे और आपके टैक्स के पैसे से। सड़क बनाना आसान काम नहीं है, आप लैंड एक्विजिशन लगता है, उसके बाद को वही वो लैंड जो है वो टाइगर कॉरिडोर के थ्रू जा रहा है, तो फिर आपको उसके लिए अलग कुछ ब्रिज विज बनाना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना। खैर बन गया, ये सब प्रॉब्लम्स के बाद भी बन गया, और उसके बाद उस पर टोल शुरू हो गया। तो मैंने और आपने तो टैक्स भर दिया, सड़क बन गई। अब उसको वो गवर्नमेंट वांट्स टू रिसाइकल कैपिटल, मतलब अच्छा एक तो बन गई, अब दूसरी सड़क बनानी, उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये इसको बेच डालो। तो इसकी ऑक्शन कराते हैं, कौन खरीदता है, राइट? ग्लोबल पेंशन फंड खरीदते हैं, क्योंकि उनको पेंशनर्स को महीना महीना तो वो लोग आके खरीदते हैं। हम क्यों नहीं लेते? हमारे पेंशन फंड क्यों नहीं लेते? क्यों? एक तो अंडरस्टैंडिंग एंड काबिलियत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है करने का। अच्छा पेंशन फंड नहीं लेंगे, मुझ जैसे फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स जो फैमिली ऑफिस से पैसे लेके मैं क्यों नहीं खरीद रहा? इसका एक सिंपल तरीका है, जो रोड का जो इन्वेस्ट से जो पैसा आता है, जैसे मैंने कहा 7-7.5% का पैसा आता है, 7% रुपये के हिसाब से 7 रुपये में से 5 रुपये जो है ब्याज के रूप में आता है, 2 रुपये डिविडेंड के रूप में आता है। अब इंडिया में आप जैसे यंग सक्सेसफुल इंटरेस्ट इनकम जब आपको आता है, उस पर आप कम से कम 38% का टैक्स भरते हो, ठीक है? तो आपके पास 100 रुपये हैं, एक दूसरे के पास 100 रुपये हैं, आप उस 100 रुपये से ये एसेट खरीदोगे, आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कम पड़ेगा। 7 रुपये तो दोनों ही कमा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में आया 4,
उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, उसके हाथ में आया 7। किसके हाथ में 7 है? जो पेंशन फंड है, जो इंटरनेशनल पेंशन फंड है, राइट? तो दे आर मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज देयर टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम इज लोअर एंड यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव। तुम्हारा डोमेस्टिक कैपिटल जो है उसके साथ compete ही नहीं कर सकती। तो क्यों पेंशन फंड को टैक्स कम लगता है? उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी कि उनका टैक्स कम लगना चाहिए। कितना कम लगता है? 0 लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 15% टैक्स लगता है, भूलोक से कहीं से भी आ जाए। अगर जापान से आए तो 10% लगता है, नेदरलैंड से आए तो 10%। तो कंट्री के साथ हमारा जो विथहोल्डिंग टैक्स का एग्रीमेंट उसके हिसाब से लगता है। हाँ, यहाँ 40% लगता है। तो हमने अपने आप को अनकम्पिटिटिव बना लिया है। अब सरकार की अपनी मजबूरी है कि भाई राज शमानी अगर इंटरेस्ट कमा रहा है तो आप तो इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में भी कमा सकते हो या किसी और बॉन्ड में पैसा डाल के भी कमा सकते हो। मुझे कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट इनकम तो आई वांट टू टैक्स इट बिकॉज मेरे को सरकार को रेवेन्यू चाहिए। तो इसलिए मैंने पॉलिसी बनाई कि इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ये टैक्स होना चाहिए। तो इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इसको हम कंट्रोल किया जाए, कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं उनके साथ। हमने कहा कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले में तो एक टैक्स ब्रेक दे दीजिए, कुछ और पॉलिसी बनाइए। लेकिन इसका विडंबना देखिए इसकी। अगर आप अपने जो इन्विट्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, कम से कम 55% इनके जो इन्विट जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। ओके, ऑलरेडी 55% फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। तो हर क्वार्टर में जो पैसा जा रहा है वो हमारे देश के लिए एक फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी है। तो 2030 तक हमारा अंदाज़ा है कि कम से कम आप एनुअल 7 या 8 बिलियन डॉलर्स का सालाना फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी अपने आप के लिए खड़ा कर रहे हो। जितना जितना आप अपने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बेचोगे, आप अपने लिए एक फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी अगले 15 साल के लिए खड़ा कर रहे हो। ये सोचने वाली बात है। तो फिर क्या और आज हम सोच रहे हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज कैसे बचाएं और एक हाथ हम खुला दे रहे हैं। बट सी वो तो ज़रूरत भी है ना, बिकॉज देन ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए हमको जैसे मैंने पहले कहा, प्रोजेक्ट्स यही जैसे मैंने कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाई, तो जैसे मैंने कहा कि वी आर अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, हमको तो कैपिटल चाहिए। तो उनको भी एनकरेज करो, हमको भी एनकरेज करो, हैव अ बेटर कैपिटल रिसाइकलिंग। That is what I'm saying. You must have both sources of capital working for recycling your assets. But उनका क्या रैशनल है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान, अगर आप मुंबई मेट्रो देखो तो अगर जापान पैसे नहीं लगाता तो वो बनती नहीं। करेक्ट, राइट, क्योंकि पैसा वहीं से आया है। करेक्ट, उनका कैपिटल आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उनकी वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसीलिए उनको इंसेंटिव दिया गया, इंसेंटिव भी दिया और पैसे भी कमाएंगे वो, टैक्स भी उनको कम लगेगा, सब होगा, राइट? और रिकरिंग जो हर एक इंसान टिकट खरीदेगा वो उसके पास पैसे जाएंगे। द सेम थिंग यू आर सेइंग कि आप जैसे जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास प्राइवेट फंड्स हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए, राइट? अलाउ नहीं, आप टैक्स में चेंज कर दो, जो करना उन्हें भी अलाउ तो आपको भी होगा, बट टैक्स, बट अपने पेंशन और इंश्योरेंस कंपनीज को तो बोलो कि खरीदें। हाँ, तो जो लार्ज इंस्टीट्यूशन फंड्स हैं हमारे पास, हाँ करेक्ट, उनको भी टैक्सेशन नहीं है। उनको टैक्सेशन नहीं है। हमारे पेंशन फंड को और हमारे इनको, दे आर कॉम्पिटिटिव बट दे आर नॉट डूइंग इट। और वो क्यों नहीं करते फिर? दे आर डूइंग बिकॉज अगेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। बट कोई इंसान अगर 26 लाख करोड़ पे बैठा होगा तो उसको क्या इनएक्सपीरियंस? ये रियलिटी है।